Thinking about dental implants but have some fears or questions in your mind? Well, not anymore, because we have an expert doctor, Mr. Pushkar Joshi, with us today, who is going to shed light on what exactly dental implants are, why you may need them, and how the procedure works, etc. Everything will get answered today. Let's get started. Welcome, Pushkar, sir. Thank you. Sir, tell us what exactly dental implants are. Okay. So whenever we lose a tooth and there is a missing tooth in our mouth, dental implant serves as a replacement option for it. So dental implant will act as a root which is fixed in the bone and over which a cap is fixed again so that it replaces our natural tooth function. So dental implant is essentially an artificial tooth replacement. Sir, how it is differ from other tooth replacement options like bridges or dentures? Okay. In a bridge, what is a bridge? Basically, a bridge is something like a connection. We connect two adjacent teeth to give a tooth in between. So for doing a bridge, we have to grind the adjacent teeth, which is not very healthy. For an implant, you don't have to touch the adjacent teeth. They remain as it is. So their health is maintained, their life is maintained. Again, if you compare it with a denture mein your eating efficiency is very very less, which in implant is almost like a natural tooth. So you cannot compare an implant with a denture or a bridge, which is much superior as compared to a denture or a bridge. What are the benefits of dental implant? So for an implant, there are 3 4 major benefits. One is you get a very good life with an implant. A properly integrated dental implant can last you a lifetime. The look, implant can give you a natural looking appearance, which a denture will never give you. Yeah. The eating comfort that you get is better. The satisfaction of chewing your food is much better in implant as compared to the other options. So implant in a way will also help you to preserve the integrity of your natural bone. Whenever we lose a tooth, the bone starts reducing, or we call it resorbing in that area. So the height reduces, the width reduces, which may cause bad effects on the adjacent teeth. By placing an implant, those effects are negated. So the bone levels are maintained, and that's a major benefit of dental implant. Again, your mouth health improves. With a bridge, you've got those under surfaces which you have to maintain. The maintenance is much higher. With an implant, your maintenance can remain like your natural teeth. So that's a major advantage. Your overall oral health gets improved. And thirdly, you get a much confident smile, obviously. Yeah, that's very important. सर काफ़ी लोगों में ये फियर रहता है डेंटल इम्प्लांट का. सो टेल अस हाउ द प्रोसीजर वर्क्स. ओके. डेंटल इम्प्लांट में डरने की ज़रूरत नहीं. सबसे पहले तो ये बात बता दूं आपको, ये एक बहुत ही प्लान्ड और सेफ प्रोसीजर है. इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो हम उनके कुछ एक्सरेज, कुछ स्कैन्स लेते हैं, जिससे हमें उनके बोन कंडीशन का पता चलता है. उसके बाद हम लोग एक इंट्राओरल स्कैन लेते हैं, जिससे हमें उनके दांतों के रखावट का पता चलता है, द पोजिशनिंग पता चलती है. और इन चीज़ों को मिक्स करके या मैच करके हम लोग आपके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं कि आपका इम्प्लांट किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, कैसे जाएगा. और उस लिए अगर आपका बोन कहीं कम है, अगर आपका टिश्यूज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है, या आपको अगर स्माइल में, जैसे सामने का दांत है, तो सामने के दांतों में काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि बोन आपका ऊपर चला जाता है, तो हंसते वक्त आपका एक दांत ऊपर नीचे दिखता है. तो वो केसेस में हमें काफ़ी बार बोन एडिशन भी करना पड़ सकता है. तो ये सब चीज़ें प्लानिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो फोटोग्राफ, स्कैन्स, एक्सरेज, ये चीज़ों की मदद लेके हम आपके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जो हम लोग फिर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एक
इजी प्रोसीजर होगा, सिंपल होगा, एक बार अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर हुई। अगर करेक्ट, प्लानिंग करेक्ट। प्रॉपर नहीं हुई तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती So, sir, one thing I understood that it is all about the right planning. So, how do you usually make it easy for your patient? है। In our clinic, we have got the latest equipment for scanning. Once the scan is done, we merge the scans and we plan a guided implant procedure for them. अभी सब गाइडेड का ज़माना आ गया है, ऑल इज़ रोबोटिक। तो हम लोग भी उसका फ़ायदा हमारे पेशेंट्स को देते हैं कि पहले से हमारा गाइडेड इम्प्लांट्स का स्टेंट्स हम लोग रेडी रखते हैं, जिसके मदद से ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमें कट्स कहीं देने की ज़रूरत ही ना पड़े। वी कॉल इट अ फ्लैपलेस इम्प्लांट प्रोसीजर, जहाँ पे बिना कट का इम्प्लांट आपको जो डायरेक्शन में चाहिए, जहाँ चाहिए वैसे हम लोग प्रॉपरली फिक्स कर सकते हैं। पेशेंट का डिस्कम्फर्ट, पेन, स्वेलिंग बहुत ही मिनिमल होता है। सर, ये ट्रीटमेंट डेंटल इम्प्लांट को कितना टाइम लगता है? आई मीन फ्रॉम कंसल्टेशन टू द फाइनल इम्प्लांट। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फ्रॉम कंसल्टेशन से हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग, वी टेक अबाउट अ कपल ऑफ डेज टू डू दैट। 2 दिन में प्लानिंग होने के बाद इम्प्लांट फिक्सिंग इज डन विद इन अ डेज टाइम। नाउ वी कैनॉट से फॉर एवरी वन एन इम्प्लांट का ट्रीटमेंट विल लास्ट सो लॉन्ग या इतना ही टाइम लगेगा। अ कंप्लीट ट्रीटमेंट माइट वेरी फ्रॉम 15 days to a year। सो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती है, हाउ इज़ द बोन, पेशेंट का मेडिकल कंडीशन कैसा है, हीलिंग कैसा होता है, कहीं हम लोगों को बोन ऐड करना है, बोन ग्राफ्टिंग करना है, नहीं करना है, एक ही स्टेप में इम्प्लांट करना है या अलग अलग स्टेजेस में करना है, उनके दांत हैं जो एक्सट्रैक्ट करने बाकी है या एक्सट्रैक्ट करने के तुरंत बाद इम्प्लांट फिक्स करना है या बाद में करना है, वेट करके करना है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल इट विल, और यू कैन से इट विल डिपेंड फ्रॉम पेशेंट टू Patient, पेशेंट। yeah. किसी किसी का ट्रीटमेंट 15 डेज में भी खत्म हो सकता है, किसी किसी को इट मे टेक मच मच लॉन्गर Okay. डिपेंडिंग ऑन द बोन कंडीशन। सर, डेंटल इम्प्लांट ये ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स में की जाती है और किन कंडीशंस में की जाती है? इम्प्लांट्स ये नेचुरल दांतों को रिप्लेस करने के लिए होता है। तो मैं उन लोगों को ये रेकमेंड करूँगा जिनको किसी वजह से दांत मिसिंग है, मतलब एक्सीडेंटल हो या दांत निकाला हुआ है, वहाँ पे आप डेंटल इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपके सारे दांत निकालने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आप डेंटल इम्प्लांट्स का हेल्प ले सकते हैं। जिनके दांत मोबाइल होते हैं या हिलते हैं, गम प्रॉब्लम्स के वजह से, पायरिया होता है, हिलने लगते हैं, तो उन केसेस में उनको दांत हिलने की वजह से खाने में दिक्कत रहती है, तो उनको भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। किसी किसी के दांत टूटे हुए रहते हैं, झड़ जाते हैं, टुकड़े बचते हैं, तो खाने में अगेन दिक्कतें आ सकती हैं। उन लोगों में भी हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स रेकमेंड करेंगे। तो सर, ये प्रोसीजर के लिए क्या कोई एज लिमिट है? अ, मैं कहूँगा अपर एज लिमिट तो उनके मेडिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। करेक्ट। ऐसे अपर एज लिमिट तो कोई नहीं है। मेरा यंगेस्ट पेशेंट वाज 82, तो उन्होंने भी डेंटल इम्प्लांट्स फुल माउथ कराए हैं, सो इट इज़ वेरी वेल स्टिल देयर। ओके। बट हाँ, लोअर एज लिमिट होती है। जब तक आपके जबड़े का पूरा ग्रोथ नहीं हो जाता है, उसके पहले हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो यूजुअली गर्ल्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 17-18 साल के बाद हम लोग रेकमेंड करेंगे, बॉयज़ के लिए शायद 1-2 साल ज़्यादा। ओके। बोन ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग इम्प्लांट्स सजेस्ट करेंगे। सर, डेंटल इम्प्लांट को कितना टाइम लगता है एंड कितना ऑफनली विजिट करना पड़ता है डेंटिस्ट के? अगेन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिसका सिंगल इम्प्लांट, एक या दो इम्प्लांट्स हैं, उनको प्रोसीजर के लिए आधा घंटा 45 मिनट्स यूजुअली सफिशिएंट हो जाता है। बट जिनके मल्टीपल इम्प्लांट्स होते हैं उनको टाइम ज़्यादा लग सकता है। कभी ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स हो सकते हैं, उसमें भी वो टाइम ऐड हो सकता है।
कुछ प्रोसीजर्स फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स जो हम कहते हैं, वो केसेस में कभी कभी हम लोग दांत निकालना, इम्प्लांट फिक्स करना और टेम्पररी दांत तुरंत फिक्स करना, ये सारा प्रोसीजर एक सिटिंग में करते हैं, तो तभी हमें 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। सो इट विल ऑल डिपेंड, हमारा प्रोसीजर क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर वो टाइम फ्रेम डिपेंड करता है। बट यूजुअली इट इज़ अ कंफर्टेबल प्रोसीजर, पेशेंट को बीच में ब्रेक्स मिलते हैं, यूजुअली कोई पेन नहीं आता है। तो सर जब हम एक इम्प्लांट करते हैं या मल्टीपल इम्प्लांट करते हैं तो क्या ये प्रोसेस पेनफुल होता है? इम्प्लांट प्रोसीजर यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। एक बार लोकल एनेस्थीसिया चढ़ गया तो पेशेंट को पेन नहीं होता है। प्रेशर फीलिंग्स होना एक्सपेक्टेड होते हैं कोई कोई प्रोसीजर्स में, बट टच फीलिंग आएगा, प्रेशर फीलिंग आएगा, बट पेन यूजुअली एक्सपेक्टेड नहीं होता। इट्स यूजुअली अ पेन फ्री प्रोसीजर। So what after anesthesia? Gone. So you mean to say the recovery part of it. So you can expect a little mild discomfort, थोड़ा mildly pain। जिस दिन हम लोगों ने इम्प्लांट किया, मे बी सेकेंड डे पे भी आपको थोड़ा पेन डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट जो कि आपको मेडिसिन से मैनेज हो जाएगा। यूजुअली बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऐसे कंडीशंस बहुत कम रहते हैं। पेन, हर एक का परसेप्शन पेन की तरफ अलग अलग होता है। किसी किसी को थोड़ा पेन भी बहुत ज़्यादा लगता है, किसी किसी को ज़्यादा पेन भी बेयर लगता है। इजीली हो जाता है। सो पेन इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट यूजुअली माइल्ड टू मॉडरेट डिस्कम्फर्ट हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट टू सेकेंड डे आपको रहेगा। थर्ड डे ऑनवर्ड्स यू शुड बी मोस्टली वेरी वेरी कंफर्टेबल। जो भी आपका डिस्कम्फर्ट होता है वो ज़्यादातर आपको मेडिसिन से पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। So sir, you just mentioned about grafting. So what is grafting? ग्राफ्टिंग इज टू ऐड। ग्राफ्ट मतलब हम लोग कुछ भी चीज़ ऐड करते हैं तो उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो नॉर्मली डेंटल इम्प्लांट्स में दो तरीके के ग्राफ्ट्स होते हैं, या तो एक बोन ग्राफ्ट होता है या तो एक सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट होता है। नॉर्मली बोन ग्राफ्ट सबसे कॉमनली किए जाने वाला ग्राफ्टिंग है। तो बोन ग्राफ्ट में क्या है, अगर आपका बोन कहीं नैरो है, जहाँ पे इम्प्लांट फिक्स करने में हमें प्रॉब्लम आ सकता है, या हमें लगता है कि हमारा साइज़ जो हम लोगों ने प्लान किया है वो साइज़ का इम्प्लांट वहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा, तो हमें वहाँ पे बोन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस जगह पे हम लोग बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी का जो बोन होता है वो बहुत नैरो होता है, नैरो होने की वजह से हमें इम्प्लांट फिक्स करने में वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो हमें बोन का साइज बढ़ाना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर में भी हमें बोन ग्राफ्ट का यूज़ करना पड़ सकता है। ऊपर के जब इम्प्लांट्स हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक साइनस होता है जो हमारा एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। जो हम लोग नोज से एयर लेते हैं, जो साइनस में जाके प्योरीफाई होती है और वो अंदर जाती है। तो साइनस लेवल जो है, अगर आपके दांत निकल जाती है तो उसका लेवल नीचे ड्रॉप होने की वजह से बोन का हाइट कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें साइनस ग्राफ्टिंग करके प्रोसीजर है वो भी करना पड़ सकता है। सो ग्राफ्टिंग यानी हम लोग बोन ऐड करने वाले हैं, उस प्रोसीजर को ग्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरा मैंने कहा सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट टिश्यू यानी मांस जो है, गम्स है आपके, कहीं आपके गम्स का टेक्सचर ठीक नहीं है, हाइट कम ज़्यादा है, दो सामने के दांत हैं, आपका गम हाइट मैच नहीं हो रहा है, आपको वो करना है। कहीं पे आपका मसूड़ा दबा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, तो उस जगह पे हम लोग लुक्स के लिए सॉफ्ट टिश्यू का ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो सर ये रिकवरी प्रोसेस कैसा होता है आफ्टर द इम्प्लांट इज डन? अगर आपका एक इम्प्लांट्स है या एक या दो इम्प्लांट्स है तो नॉर्मली रिकवरी बहुत फास्ट रहेगा। स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यूजुअली 1 या 2 दिन में आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हो, और जो भी माइनर डिस्कम्फर्ट आपको लगता है वो भी मेडिसिन से निकल जाता है। अगर आपके मल्टीपल इम्प्लांट्स हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको ज़्यादा मॉडरेट लेवल तक हो सकता है। अगेन वो भी आपका मेडिसिन से केटर हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ एक्सपेक्टेड नहीं होती है। बट स्वेलिंग डिपेंड्स, अगर कम ट्रोमेटिक प्रोसीजर हुआ है, 1 या 2 इम्प्लांट्स है, तो स्वेलिंग यूजुअली ज़्यादा नहीं आती है।
बट प्रोफाउंड प्रोसीजर है, मल्टीपल इम्प्लांट्स है, Mm-hmm. ग्राफ्टिंग्स है, तो स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है जो 4-5 दिन तक भी रह सकती है। Okay. उसमें आपका आफ्टर केयर आप कैसे लेते हैं उसके ऊपर स्वेलिंग कितना जल्दी कम होता है और आपका पेन लेवल कितना जल्दी कम होता है वो डिपेंड करेगा। So, sir, you just mentioned about aftercare. So, what is that? Please tell us. आफ्टर केयर इज हाउ यू टेक केयर आफ्टर द प्रोसीजर। तो सबसे पहले है हाइजीन मेंटेनेंस। Mm-hmm. आपको सर्जिकल एरिया बहुत अच्छे से क्लीन रखना है। तो उसको आप एक वेट कॉटन आपके माउथ वॉश में डिप करके उसको क्लीन कर सकते हैं। आप माउथ वॉश से अच्छे से गागल्स कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं, यानी वो जगह डिसइंफेक्टेड रहेगा। Mm-hmm. और सर्जिकल एरिया छोड़ के बाकी का एरिया आप ब्रशिंग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी खाना जमा हुआ नहीं रहेगा, सो इन्फेक्शन का चांसेस कम रहेगा। और उसके अलावा आपके खाने में भी आपको थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं, जैसे कुछ दिनों तक आपको सॉफ्ट डाइट लेंगे तो बेटर रहेगा। हार्ड डाइट जैसे रॉ फ्रूट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, या क्रंची चीज़ें हैं, वो अगर अवॉइड होती हैं तो वो बेटर है, बिकॉज वो कभी कभी वहाँ पे सर्जिकल एरिया में ज़ख्म क्रिएट करते हैं और इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ा देते हैं। सो सॉफ्ट चीज़ें खाएंगे फॉर द इनिशियल फ्यू डेज तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। Yes. तो एवरीथिंग विल अगेन डिपेंड ऑन हाउ यू मेंटेन दैट। Mm. वहाँ पे जबान, उंगली अगर आप नहीं लगाएंगे तो इट इज़ बेटर, आपका सर्जिकल साइड डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हीलिंग थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर आपके टेम्पररी दांत हैं, अगर तो वो कुछ दिनों तक अगर आप नहीं लगाते हैं तो उसको एक हीलिंग फास्ट होने में थोड़ी हेल्प मिलती है। Mm-hmm. सो ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आई गेस योर रिकवरी शुड बी मच मच फास्टर एंड कंफर्टेबल। So, after the implant is done, so how are the food limitations and क्या diet follow करना चाहिए afterwards? इम्प्लांट होने के बाद नॉर्मली हम लोग सॉफ्ट डाइट सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। Mm. सॉफ्ट चीज़ है जैसे स्मैश पोटैटोज, पॉरेजेस, खीर वगैरह, दाल चावल, खिचड़ी, ऐसी पतली चीज़ें अगर लेते हैं तो बेटर रहेगा। Mm. क्रंची चीज़ें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करेंगे Mm. तो हीलिंग में थोड़ी सी मदद Mm. मिलती है। क्रंची चीज़ें अगर वहाँ पे जाके ज़ख्म करेंगे, जैसे चिप्स है, रॉ वेजिटेबल्स भी हैं, अगर वहाँ पे इम्प्लांट एरिया में या सर्जिकल साइट में जाके अगर कहीं ज़ख्म करते हैं या इंटरफेयर करते हैं तो हीलिंग आपका डिले हो सकता है या इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप कुछ दिनों तक सॉफ्ट डाइट ही फॉलो करें। Mm. जब तक आपके स्टिचेस है, यू कैन से स्टिचेस नॉर्मली अराउंड 7 to 8 days रहते हैं, तो तब तक अगर आप थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे तो इट विल बी बेटर। So, sir, how is the aftercare process after the implant? You can divide it into immediate aftercare और लॉन्ग टर्म आफ्टर केयर। तो इमीडिएटली आप इम्प्लांट होने के बाद आपको कोल्ड कंप्रेशन या आइस पैक एप्लीकेशन जहाँ पे आपका इम्प्लांट प्रोसीजर हुआ है वहाँ आप कर सकते हैं, उससे स्वेलिंग का चांसेस बहुत कम हो जाता है। Mm. आइस एप्लीकेशन शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में होना चाहिए। आइस पैक एप्लीकेशन थोड़ा मिनट करके यू कैन रिमूव इट अगेन अप्लाई इट, ऐसे आप सिर्फ उसी दिन कर सकते हैं, आपको दूसरे दिन से वो नहीं करना है। Mm-hmm. आइस पैक बेसिकली वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम करता है, तो अगर आप दूसरे दिन से वहाँ पे यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से स्वेलिंग जाने में ज़्यादा समय लगे। तो जो आप आइस पैक यूज़ करोगे एसेंशियली वही दिन यूज़ करना है। Correct. जिस दिन आपका प्रोसीजर होता है उस दिन आपको सॉफ्ट और कोल्ड डाइट फॉलो करना है। Mm. आपको कोई भी गरम कड़क चीज़ नहीं लेनी है Mm-hmm. और स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। इससे बेसिकली आपका डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग आने का चांस अगेन आप मिनिमाइज करते हो। माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, उससे वो एरिया क्लीन रहेगा। ये सारे चीज़ें जो हैं आपको वो पर्टिकुलर दिन ही फॉलो करनी है। Mm-hmm. सेकंड डे ऑनवर्ड्स आप वो एरिया कितना अच्छे से मेंटेन करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्प्लांट प्रोसीजर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसको डिसइंफेक्टेड रखना, यानी उसको कोई इन्फेक्शन नहीं लगे। तो सेकंड डे से आपका ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपका ब्रशिंग अच्छे से होना चाहिए, आपने माउथ वॉशेस अच्छे से यूज़ करने चाहिए,
वहाँ पे एक वेट कॉटन लेके सर्जिकल एरिया आप क्लीन कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं उस चीज़ को, यहाँ पे वहाँ पे यानी कोई खाना जमा हुआ नहीं रहेगा, तो इन्फेक्शन का चांसेस आपका ड्रॉप हो जाएगा। सो ओवरऑल ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो यू शुड बी मच मोर कंफर्टेबल। सर, काफ़ी लोगों का कंसर्न है अबाउट द कॉस्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट। इज़ इट अफोर्डेबल? आई वुड से डेंटल इम्प्लांट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। अगर आप बाकी चीज़ों से कंपेयर करते हैं, अगेन ब्रिजेस, तो आपको कुछ ही साल चलेंगे। अगर आप इम्प्लांट कहोगे तो आपको लाइफ टाइम चलने वाला है। तो एक बार आज आपने ब्रिज कर लिया, वापस कुछ सालों बाद आपका दांत प्रॉब्लम दे रहा है, अगेन आप रिप्लेस करते हो, या डेंचर्स आज बनाया 2-4 साल बाद वापस नए नए डेंचर्स बनाते जा रहे हो, तो ये रिपीटेड कॉस्ट की जगह पे आपको एक ही बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल रहा है जो वन टाइम आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट्स देने वाला है। सो आई वोंट से दैट दीज आर एक्सपेंसिव, और I would say this is the most affordable option over the long term. कॉस्ट फैक्टर्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं इम्प्लांट्स की, जैसे कि आपका बोन कंडीशन अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक पर्सन के मेडिकल कंडीशन, बोन कंडीशन के ऊपर हम लोग अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसके वजह से कॉस्ट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। बोन ग्राफ्टिंग है नहीं है, कोई एडेड प्रोसीजर्स आते हैं, सामने का दांत है जिसको हमें कुछ एडिशनली चीज़ें करनी है आपको बेहतर दिखाने के लिए, तो उसमें भी आपके कॉस्ट थोड़े ऐड हो सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल फॉर योर ओन गुड, आपके लिए ही है, और आपको एक बेहतर ज़िंदगी के लिए ही है। सो आपके ज़िंदगी की तरफ अगर आप देखते हो, आपका डाइजेशन इसके ऊपर डिपेंड है, आपका कॉन्फिडेंस इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये सारी चीज़ें आप कॉस्ट से कंपेयर करते हो, तो आई डोंट थिंक डेंटल इम्प्लांट्स आर एक्सपेंसिव, दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल एज इफ यू कंपेयर इट विथ ऑल दीज थिंग्स। सो यस, अगेन हमारे क्लिनिक में आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है ईएमआई का। तो यहाँ पे एक दो कंपनीज हैं जैसे बजाज है, जो आपको इजी अफोर्डेबल ईएमआईज में 2 साल में 3 साल में आप स्प्लिट करके वो पेमेंट्स आप इजीली कर सकते हो, तो आपको कॉस्ट का बर्डन भी नहीं आता है। आपको और एक ध्यान रखना है कि स्मोकिंग, निकोटीन, कोई भी आप नशे वाली चीज़ें आपको परहेज़ रखना है। एटलीस्ट 8 दिन तक आप उसे नहीं यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उससे हीलिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हीलिंग अच्छे से नहीं होगा तो पेन आपका बढ़ सकता है। अल्कोहल, दारू भी आपको, अगर आप 8-10 दिन नहीं लेंगे तो उससे हीलिंग थोड़ा फास्ट होने में मदद होगी। अल्कोहल से इन्फेक्शन का चांस वहाँ पे बढ़ सकता है। तो सर, इम्प्लांट में क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन? 2-3 तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नीचे के जबड़े में एक नर्व होती है जिसका हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, तो अगर आपका प्लानिंग बराबर नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ पे नर्व डैमेज होने का एक चांस रहेगा। ऊपर के जबड़े में साइनस होता है। साइनस एरिया एक खाली जगह है, वहाँ पे आपका अगर बोन सपोर्ट प्रॉपर नहीं है और अगर आपने प्लानिंग अगेन ठीक से नहीं हुई है तो वहाँ पे आपका इम्प्लांट फेल होके साइनस में जा सकता है। ये 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तीसरा, इन्फेक्शन होने का एक चांस रहता है, अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा नहीं रहे तो भी इन्फेक्शन का चांसेस बहुत हाई रहेगा। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, अगर ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपके इम्प्लांट हीलिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रिस्क फैक्टर्स तो यही हैं। सबसे वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन एक इम्प्लांट का होता है कि एक इम्प्लांट फेल हो सकता है। अगर फेल होता भी है तो उससे ज़्यादा उसमें कोई बड़ी बात यूजुअली नहीं होती है। So sir, what if implants fail? अगर इम्प्लांट फेल होता है तो किस वजह से फेल हुआ है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन हमें ख़त्म करना है, और उसके बाद वहाँ के कंडीशन के हिसाब से हम लोग नया इम्प्लांट वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अगर कोई और वजह है जैसे एलर्जिक हो गई है इम्प्लांट के मटेरियल से, जो कि बहुत रेयर है, टाइटेनियम या जर्कोनियम से एलर्जी बहुत ही रेयर है, बट हो सकती है। अगर होती है और बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो
हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने पड़ सकते हैं, बट अगर एलर्जी वजह नहीं है तो हम लोग नया इम्प्लांट वहाँ पे वापस फिक्स कर सकते हैं। Sir, what advice would you like to give someone who are thinking about dental implants? I would definitely recommend dental implants. It's a very, very good option to get your teeth replaced. It's the most near natural way to have your teeth. आपका eating efficiency, आपका smile, आपका look, आपका appearance is very, very enhanced because of dental implants. So I would always recommend this treatment option. But dental implants is all about planning and execution. तो आपके डॉक्टर के पास वो एक्सपर्टीज, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए टू एग्जीक्यूट द राइट amount of planning involved in that. You should have those softwares, you should have those technology, you should have those investigations before you actually jump into the procedure. So that's Correct. very, very important. So experience plays a key role in that. Sir, why one should choose Care and Cure for their dental implant treatment? Care and Cure, the dental wellness clinic, is in operation since 19 years. I myself, I'm practicing since 19 years, and we have the best teams that are needed for doing dental implants. We have got all the specialties under one roof. We have done more than 4,500 implants in our clinic till date, and we have also catered to more than 13,000 patients overall in our clinic. So we have got a vast experience behind this. हमारे पास, we have got advanced equipments, the softwares that are needed for all the intricate procedures that are needed for doing dental implants. May it be different grafting procedures, may it be multiple procedures, may it be full mouth implant procedures, may it be doing full mouth implants in 72 hours, or we say all on four implants, or teeth in 72 hours, or immediate implants, immediate teeth placement. We have done all sorts of procedure over here in our clinic, and we have the experience and expertise to do that. So I would definitely recommend our clinic for